Hello dear TYBSc microbiology students. So in the last lecture we have learnt about the formation of different type of WBCs or white blood cells, which were neutrophil, eosinophil, basophil and monocyte. And in this PPT we are going to learn the last type of blood cell formation, which is the lymphocyte formation, which is part of then lymphoid lineage again. So here in this PPT we are going to study the detailed section about the lymphoid lineage or the lymphoid cell formation or lymphopoiesis, and along with that we are going to see the different types of the T and B lymphocytes, like their subtypes or the subsets. So let's start. So begin with the lymphocytes. Now उनका नाम है lymphocyte. So they are part of a lymphatic system. They may be present in the lymph, that is why they are called as lymphocytes. Cells which are present in the lymph, they are present in the lymph node. So this is called as the lymphocytes. So talking about the lymphocytes, we know there are three types of the lymphocyte: T lymphocyte, B lymphocyte, and the third type, which is natural killer cell. Natural killer cell is separate type नहीं है actually. It is a type of the T lymphocyte. So जो lymphocytes होते हैं, they are the major playing the major role in the body immunity. उनका बहुत बड़ा हाथ होता है body immunity में. They may be part of the humoral immunity or they may be the part of the cellular immunity, but ये दोनों साथ मिलके जो है body का एक बहुत अच्छा we can say defense system जो है वो create करते हैं. So talking about the lymphocytes, they are like small round cells which are found in the peripheral blood, lymph, lymphoid organs and many other tissues. ऐसा नहीं ज़रूरी कि वो लिम्फ में ही, मतलब फॉर्मेशन उनको ऑब्वियसली लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होता है, बट देन वो माइग्रेट कहीं पे भी होते हैं, बिकॉज कहीं पे भी एंटीजन आ सकते हैं, तो वी नीड देम everywhere. So here they may be present in the blood, they may be present in the lymph, they may be present in the lymphoid organs, and about 20 to 25% of the leukocyte, मतलब WBC के population में से 20 to 45% population they occupy. एंड हमारे बॉडी में अबाउट 10⁻12 लिम्फोसाइट्स होते हैं, जिसमें से एवरी डे और एवरी डे वी कैन से डेली लाइक 9⁻10 10⁻12 में से 10⁻9 तो रिन्यू होते हैं. मतलब ऑब्वियसली बॉडी में कितने जो है एंटीजन से इनकॉपरेट होते होंगे, तो उनकी डिफेंस के लिए बहुत सारे लिम्फोसाइट्स लगते होंगे, एंड दैट इज़ हाउ दे आर गोइंग टू बी रिन्यूड डेली. एंड उनका नंबर मेंटेन होता है अबाउट 10⁻12. So then talking about the lymphocytes, generally T cell, B cell and natural killer cell, but natural killer cell, they are again the type of the T lymphocytes. So we know the basic two types, T lymphocyte and B lymphocyte, very common names. Then talking about the origin of the lymphocyte, तो बी लिम्फोसाइट, इनको बी लिम्फोसाइट या बी सेल क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर मैच्योर्ड एज वेल एज दे आर ओरिजिनेटेड इन द बोन मैरो इटसेल्फ. उनको कहीं और जाने की या कहीं और जाके मैच्योर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती. दे आर गोइंग टू फॉर्म ओवर देयर, दे आर गोइंग टू मैच्योर्ड. उसके बाद वो ब्लड में जाएंगे एंड अपना फंक्शन कैरी आउट करेंगे. ऑपोजिट टू दैट, थाइमस जो टी सेल जो है या टी लिम्फोसाइट जो है, दे डोंट हैव दैट एबिलिटी. वो फॉर्म तो होंगे बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट के जैसे, but they don't mature in the bone marrow. They need to go to thymus to get matured, because वहाँ पे वो मैच्योर नहीं होते, वो थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट्स और दे आर कॉल्ड एज थाइमस डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स. जो हम डिटेल में और ज़्यादा अच्छे से लिम्फोइड ऑर्गन्स जब हम स्टडी करेंगे तब आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ आएगी. बट अभी आप ये बात याद रखो, दे आर मैच्योर्ड इन द थाइमस. वो ओरिजिनेट तो बोन मैरो में होते टी सेल, but they don't get matured over there. They need to go to thymus to get matured. That is how they are called as the T lymphocyte. सो टॉकिंग अबाउट द बी लिम्फोसाइट, उनको बी लिम्फोसाइट इसलिए भी बोल जाता है क्योंकि वो बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं. बट अदर देन दैट, उनका जो डिस्कवरी हुआ था, या व्हेन दे वर डिस्कवर्ड, दे वर फाउंड इन द बुरसा.
बुर्सा ऑर्गन जो हम में नहीं, वो बर्ड्स में प्रेजेंट रहता है, जो बुर्सा ऑर्गन प्रेजेंट रहता है बर्ड्स में, इट वॉज फाउंड इन दैम, दैट ऑर्गन, सॉरी, it was found in that organ, that is why they are called as the B cells. Then talking about the lymphocyte maturation, you can see here कि बोन मैरो में दोनों के स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड देन दे गेट माइग्रेटेड, मतलब वो फॉर्म तो बोन मैरो में होंगे, बट बी सेल जो है उनका डिफ्रेंशिएशन जो है वो बोन मैरो में होगा. टी सेल का डिफ्रेंशिएशन विल टेक प्लेस इन द थाइमस, you can see here. So that is why they are called as the T cell. So then lymphocytes का क्लासिफिकेशन, मतलब उनका स्ट्रक्चर वैसे कुछ वेरिएशन नहीं होता. उनका स्ट्रक्चर जो होता है ना दोनों का, टी सेल एंड बी सेल का, और नेचुरल किलर सेल आज टाइप ऑफ द टी सेल. सो ये दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, यदि तीनों का स्ट्रक्चर होता है, दे आर ऑल लाइक सेम ही होते. वो अगर हिस्टोपैथोलॉजिकली देखें और हिस्टोलॉजिकली सॉरी देखें हम, दे आर स्ट्रक्चरली सेम, बट उनमें जो है मार्कर्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कुछ रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके बेसिस पे वो क्लासीफाई किए जाते हैं. इवन वो जो है एक्शन कैसे करते हैं उसके बेसिस पे भी उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि दोनों अलग है. सो उनका वर्क फ्रॉम वी कैन से, या उनका वर्किंग जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है. सो दैट इज़ हाउ दे आर गोइंग टू बी क्लासिफाइड. सो नो एज आई टोल्ड यू, टी सेल जो होते हैं वो थाइमस डिराइव्ड टी सेल्स होते हैं, एंड दे हैव द सी डी मार्कर्स ऑन देम. मैंने आपको बोला था मार्कर्स कौन से होते हैं, सी डी मार्कर्स. देन दे लाइक ऑक्यूपाई अबाउट 65 to 80% ऑफ द लिम्फोसाइट पूल, मतलब 65 to 80% तो टी सेल ही अकेले होते हैं, बिकॉज उनके बहुत ज़्यादा सब टाइप से आप जब डिटेल में स्टडी करने वाले हो आगे आपको पता चल जाएगा. देन they have the longer span about months to years than the B cell. Then they are found in the subcortical region. अब जब हम lymph node का structure देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि वो lymph node में भी present रहते हैं. Then they are they are having the they are having the receptors for the sheep RBCs. मतलब अगर हमने sheep RBC को like ह्यूमन में डाला या ह्यूमन ब्लड में इनकॉपरेट किया, देन दे विल बाइंड टू द टी सेल्स एंड दे हैव सम काइंड ऑफ लाइक रिसेप्टर्स एंड दे फॉर्म द रोजेट्स विद देम, लाइक अग्लूटिनेशन कॉज करेगा. तो ये आपको इन डिटेल में अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपके नॉलेज के लिए. सो नाउ द टी सेल जो माइग्रेट होके थाइमस में मैच्योर होती है. सो नाउ अगर हम ओवरऑल प्रोसेस देखें लाइक हेमेटोपोएसिस का, लाइक टी सेल एंड बी सेल के फॉर्मेशन का, आई विल शो यू. सो लिम्फोपोएसिस की अगर हम प्रोसेस की बात करें तो जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल होती है, दिस विल कन्वर्ट इनटू द माइलॉइड प्रोजेनेटर और माइलॉइड स्टेम सेल. तो माइलॉइड स्टेम सेल जब फॉर्म होगी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिम्फोब्लास्ट. वहाँ पे हमने माइलियोब्लास्ट देखा था इन द WBC फॉर्मेशन, सॉरी इन द माइलॉइड सेल फॉर्मेशन, बट इन द लिम्फॉइड सेल फॉर्मेशन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिम्फोब्लास्ट. बस नाम अलग है, बट जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन होता है. अब यहाँ पे कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, दे आर सेम लाइक इंटरल्यूकिन 1 और 3 दोनों में कॉमन है. एक्चुअली सभी में इंटरल्यूकिन 1 and 3 कॉमन है, बट अदर देन दैट हियर वी हैव, वहाँ पे हमने देखा था ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं. यहाँ पे अग्रैन्युलोसाइट, बिकॉज ये ग्रैन्युलोसाइट नहीं है, इट इज़ अ नॉन ग्रैन्युलोसाइटिक टाइप ऑफ WBC. दैट इज़ वाई इस स्टेज पे, मतलब हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल और माइलियोटिक स्टेम सेल के बाद, सॉरी लिम्फॉइड स्टेम सेल जब फॉर्म होनी है, तब ये जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है ना, उससे जाके इंटरल्यूकिन 1 और 3 के साथ अग्रैन्युलोसाइट AGCSF अग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जाके बाइंड होगा, उससे जाके ये फॉर्म होगा लिम्फोब्लास्ट, और लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट, और उसके बाद लिम्फोसाइट, फिर वो टी होगा, बी लिम्फोसाइट होगा, या नेचुरल किलर से जो भी फॉर्म करना है. सो ये जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स है, सॉरी जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, आप स्टेजेस याद रखो इन शॉर्ट. लिम्फॉइड स्टेम सेल, सॉरी हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से आके कौन बाइंड हुआ, अग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर AGCSF, उससे कन्वर्ट हो गया. अब ये हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया इनटू द लिम्फोब्लास्ट. लिम्फोब्लास्ट फॉर्म हुआ.
लिम्फोब्लास्ट ने लिम्फोसाइट फॉर्म करना है, तो इसके लिए वजह से उसने पहले क्या फॉर्म किया, प्रोलिम्फोसाइट। प्रोलिम्फोसाइट में कुछ चेंजेस हुए, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल लिम्फोसाइट। और वो एक्चुअल लिम्फोसाइट डिपेंडिंग वो मैच्योर कहाँ होता है, अगर वो मैच्योर बोन मैरो में हुआ तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बी सेल, अगर वो गया थाइमस में एंड दे मैच्योर ओवर देयर देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टी सेल। सो ऐसा एक ओवरऑल लिम्फोपोएसिस का प्रोसीजर है। देन अगर हम बात करें जो टी सेल होती है उनकी, तो टी सेल जनरली दे आर क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स लाइक टी हेल्पर सेल्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज टीएच सेल्स विच आर अगेन कॉल्ड एज CD4 टी सेल्स। उन पे जो है CD4 मार्कर्स प्रेजेंट रहते, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज CD4 टी सेल्स। अगर कहीं आपको CD4 नाम दिखे तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, दे आर क्लासिफाइड एज अ टी हेल्पर सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल यानी TC सेल्स और द साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट T lymphocyte CLT, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द CT8 टी सेल्स। देन मेमोरी टी सेल, जैसे बी सेल में भी मेमोरी सेल्स होती है, टी सेल्स में भी होती है। देन रेगुलेटरी टी सेल्स विच आर फॉर्मली नोन एज सप्रेसर टी सेल, ये रेगुलेशन का काम करती है। ऑटो इम्यून डिसीजेज जो है उससे प्रिवेंट करने के लिए रेगुलेटरी टी सेल्स काम आती है। नेचुरल किलर टी सेल, जो लिम्फोसाइट्स के मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, उसमें से नेचुरल किलर टी सेल्स जो है नेचुरल किलर सेल है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द टी सेल। देन gamma delta T cells which is also called as they are also a type of the T cells जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं रहते, but they are also important type of T cell. So here you can see in the diagram, इतना important नहीं, बट थाइमोसाइट फॉर्म हुआ, मतलब जहाँ पे हमने देखा कि लिम्फोसाइट प्रोलिम्फोसाइट से लिम्फोसाइट फॉर्म हुआ, तो वो लिम्फोसाइट क्या हुआ, थाइमोसाइट। अगर हमें टी सेल फॉर्म करनी है तो थाइमोसाइट, ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, ओवरऑल थाइमस में होगी, वहाँ पे मैचुरेशन होता है। सो इट इज़ अ थाइमोसाइट एंड इट इज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द CD4 और CD8 थाइमोसाइट। उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड होगा इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हमने यहाँ पे स्टडी की। टी हेल्पर सेल हो, साइटोटॉक्सिक हो, मेमोरी हो, रेगुलेटरी हो, नेचुरल किलर हो या गैमा डेल्टा हो। So now talking about the T helper cell which is the first type of T cells which is CD4 T cell। तो इनका नाम है हेल्पर, मतलब ये किसी को तो भी हेल्प करने वाली है। तो टी सेल की अगर हम बात करें, एक मेजर क्लासिफिकेशन उनका हुआ है साइटोटॉक्सिक टी सेल में एंड द टी हेल्पर सेल में। टी हेल्पर सेल का नाम है टी हेल्पर सेल, मतलब वो हेल्प करने वाली, किसको हेल्प करने वाली, एक तो वो बी सेल को हेल्प करेगी या तो वो टी सेल को हेल्प करेगी, सॉरी साइटोटॉक्सिक टी सेल को हेल्प करेगी। तो हेल्प कैसे करेगी, ये जो होते हैं ना टी हेल्पर सेल, जनरली वो एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब क्या होगा, कहीं पे बॉडी में एंटीजन ने एंट्री ली तो वो एंटीजन जो है अगर वो सेल के अंदर है, वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहा सेल, मतलब कोई सेल उसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रही, तो ये टी हेल्पर सेल जो है वो क्या करेगी, उसका एक पेप्टाइड फॉर्मेशन करेगी, उसको कॉपी कर लेगी और वो जाके प्रेजेंट करेगी, बी सेल को दिखाएगी या तो फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल को दिखाएगी। फिर उनको सिग्नल मिला तो वो डायरेक्टली एक्शन करेगी। एक तो बी सेल आपको पता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगी, या टी सेल आके डायरेक्टली उस साइटोटॉक्सिक टी सेल आके डायरेक्टली उसका फैगोसाइटोसिस अपोप्टोसिस करेगी। तो ये जनरली होता है कि जो टी हेल्पर सेल है, इट विल हेल्प द बी सेल टू इधर प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज और इट विल हेल्प द टी साइटोटॉक्सिक टी सेल टू डू द अपोप्टोसिस प्रोसेस, जो हम देखने वाले आगे जाके। ये अपोप्टोसिस प्रोसेस वाली इंजाइम्स वगैरह जो होती है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल में प्रेजेंट रहती है। सो टी हेल्पर सेल का यही काम है। देन इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन द थाइमिक मेडुला, थाइमस के मेडुला रीजन में होती है। थाइमस का स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि उसमें कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। सो थाइमस में होता है मेडुला, उसमें ये टी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। मैंने आपको बोला मैच्योर्ड वो थाइमस में होते, टॉन्सिल्स में भी होते हैं, ब्लड में भी होते हैं। देन उनका एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं नॉन पेप्टाइड बाइंडिंग पोर्शन ऑफ द MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल। MHC क्लास 2 आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब वो भी एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करते हैं, बट वो जनरली पेप्टाइड का करते हैं। बट नॉन पेप्टाइड का भी ये जो CD4 है ये उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा, जो CD4 हेल्पर टी सेल है। देन
CD4 helper cell is restricted to the recognition of the peptide MHC class 2 मतलब वो बस MHC class 2 मॉलिक्यूल्स के जो पेप्टाइड्स है या नॉन पेप्टाइड्स है उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा. इन शॉर्ट आपको कुछ याद नहीं रखना है, ये याद रखो आप जो CD4 है, जो हेल्पर सेल्स है उनका काम क्या है, एंटीजन प्रेजेंटेशन का, एंटीजन को प्रेजेंट करना, किसको, साइटोटॉक्सिक टी सेल को या तो फिर बी सेल को. ये आप याद रखो. यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर इट इज गिवन दैट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल दे आर एंड बिकॉज दे एक्सप्रेस द CD4 प्रोटीन, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज द CD4. मतलब उनके सरफेस पे या उन सेल के सरफेस पे इट इज हैविंग द CD4 टाइप ऑफ मार्कर्स या प्रोटीन, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज द CD4 टी सेल्स. देन उनका भी लाइक हेल्पर टी सेल का भी क्लासिफिकेशन किया गया है, टी हेल्पर 1 सेल, टी हेल्पर 2, टी हेल्पर 3 सेल, टी हेल्पर 17 और टी हेल्पर FH. सो ये जो टी हेल्पर सेल है ना उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्ट्रक्चरली, सभी टाइप के टी हेल्पर सेल ही है, बट उनमें जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग की जो कैपेबिलिटी है या पैटर्न है वो डिफरेंट है. मतलब टी हेल्पर 1 थोड़ा सा अलग टाइप का प्रेजेंटेशन करेगा, टी हेल्पर 7 हर सेल यूनिक होता है, सो वो अलग अलग टाइप का एंटीजन प्रेजेंटिंग करेगा. इसकी वजह से टी हेल्पर सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका क्लासिफिकेशन इज इनटू लाइक अबाउट 5 टाइप्स, टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2, टी हेल्पर 3, टी हेल्पर डायरेक्टली 17 एंड टी हेल्पर FH. सो नाउ दिस टी हेल्पर सेल का आपको समझ आ गया होगा. मेजर फंक्शन है एंटीजन प्रेजेंटेशन और उनकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कि वो कैसे एंटीजन प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, एंड दे आर हैविंग CD4 मार्कर्स ऑन देम, रिमेंबर दिस थिंग. देन साइटोटॉक्सिक टी सेल. सो नाउ दिस टाइप ऑफ द सेल्स, उनका नाम ही है साइटोटॉक्सिक टी सेल. सो नाउ दे आर हैविंग द CD8 टाइप ऑफ मार्कर्स ऑन देम. यहाँ पे हमने देखा था CD4 मार्कर्स होते हैं टी हेल्पर सेल में, एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल में CD8 मार्कर्स होते हैं. देन दे आर फाउंड मेनली इन द बोन मैरो एंड द लिम्फोइड टिश्यू. अभी ये मैच्योर होने के बाद थाइमस से वो फिर से बोन मैरो में भी फाउंड हो सकते हैं, या तो फिर गट यानी कि हमारे स्टमक के लिम्फोइड टिश्यू में भी प्रेजेंट रहते हैं. देन रिकॉग्नाइज द नॉन पेप्टाइड, ये भी नॉन पेप्टाइड पोर्शन ही रिकॉग्नाइज करते हैं, बट ये किसका करते हैं, MHC 1 का. वहाँ पे हमने देखा था वो किसका करते हैं, MHC 2 का. देन CD8 cells are also known as cytotoxic T cells are restricted to the recognition of the class 1 complexes. class 1 के ही वो नॉन पेप्टाइड रीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे. देन इनका फंक्शन क्या है. सो साइटोटॉक्सिक टी सेल का फंक्शन है, एक तो वायरस ने इन्फेक्ट, क्योंकि वायरस आपको पता है पैरासाइटिक होते हैं, वो नॉन लिविंग होते हैं, जब वो सेल को इन्फेक्ट करते हैं तभी उनका रेप्लिकेशन होता है. तो वो सेल जो इन्फेक्टेड है उनको किल करने का काम साइटोटॉक्सिक टी सेल करेंगे या CD8 टी सेल करेंगे. एलोग्राफ्ट सेल का भी वो किल करते हैं, मतलब कोई सेल जो है वो अपनी नहीं है, किसी से हमने ग्राफ्ट की है या फिर किसी आउट लाइक हमारी ओन सेल ना हो या फिर इन्फेक्टेड सेल हो तो उसको भी किल करेगी, या फिर वो ट्यूमर सेल क्यों ना हो, लाइक कैंसर सेल्स हो तो उनको भी किल करेंगी, बॉडी को प्रिवेंट करेंगी फ्रॉम कैंसर. ये फंक्शन अगर किसी में बिगड़ गया तो उनको कैंसर होता है, इट इज़ कॉमन सेंस. देन cell mediated cytotoxicity is an apoptotic process that appears to be mediated by the separate pathways. मतलब एक apoptosis phagocytosis जैसे हमने देखा, apoptosis भी एक फिनोमिनॉन है, जैसे वहाँ पे भी सेल का लाइसिस करके उनको किल फैगोसाइट करके उनको किल किया जाता है, इनगल्फ किया जाता है, देन किल किया जाता है. यहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व होती है, कुछ ऑक्सीडेशन वगैरह होके अपॉप्टोसिस में सेल की लाइसिस की जाती है. सो ये जो प्रोसेस है ये यूनिक एबिलिटी किसकी है, साइटोटॉक्सिक टी सेल की. ये एबिलिटी है कि वो उनको लाइस करे, कैंसर सेल हो, वायरस इन्फेक्टेड सेल हो या फिर कोई लाइक फॉरेन सेल हो, उनको किल करने का काम कौन करेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल. Then signal delivery by the cytotoxic T cell to the target cell which is requiring a cell to cell contact. This pathway is calcium independent. So now sometimes it is also like
अगर टी हेल्पर सेल ने इसको सिग्नल किया तब भी ये जो है वो अपोप्टोसिस की प्रोसेस कैरी आउट करेगी या वो डायरेक्टली किल करेगी. सो हियर इट इज़ अ लाइक कैल्शियम इंडिपेंडेंट पाथवे. यहाँ पे कैल्शियम वगैरह या फिर आयंस की ज़रूरत नहीं पड़ते जनरली. सो दिस इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द साइटोटॉक्सिक टी सेल किल्स द सेल. सो आपको ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टी हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल में क्या डिफरेंस है. सो यहाँ पे हम समराइज भी कर लेंगे कि उन दोनों में क्या डिफरेंस, क्योंकि ये दोनों मेजर टाइप है. टी हेल्पर सेल में है कुछ सब टाइप्स, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 17, टी हेल्पर 2 एंड F8 वगैरह. सो हियर और टी हेल्पर सेल की अगर हम बात करें, दे हैव द CD4 मार्कर, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, CD4 प्लस टी हेल्पर सेल. एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल पे होते हैं CD8 टाइप ऑफ सेल्स और CD8 टाइप ऑफ मार्कर्स. इसकी वजह से उनको CD8 सेल्स भी बोला जाता है. Then it has this T helper cell helps to induce the immune response and cytotoxic T cell predominantly cytotoxic. मतलब T helper cell जो है वो हेल्प करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए बी सेल को या साइटोटॉक्सिक टी सेल को. बट ये जो सेल है साइटोटॉक्सिक टी सेल, उनको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है. वो खुद अपोप्टोसिस करेगी, उसको किसी को सिग्नल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ वाई दे आर साइटोटॉक्सिक. एंड टी हेल्पर सेल दे इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स और दे हेल्प टू इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स. वो खुद इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगी, कुछ एंटीबॉडी प्रोडक्ट्स या कुछ प्रोसेस वगैरह नहीं करेगी. देन इट इज़ जनरली गोइंग टू रिकॉग्नाइज द MHC2 मॉलिक्यूल्स. जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जो मॉलिक्यूल्स होते उनका क्लास 2 ये रिकॉग्नाइज करने वाले हैं. एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल विल रिकॉग्नाइज MHC1. देन APCs आर एक्टिवेटेड टू किल, मतलब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है उनका रोल प्ले करते हैं. मतलब वो कुछ साइटोकाइंस वगैरह सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज करेंगे जैसे इंटरल्यूकिन वगैरह. वो रिलीज करने के बाद ही बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी या साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो जाएगी. ये काम करे, ये बस सिग्नलिंग का काम करेंगे. ये कुछ करने वाले हैं नहीं, बस सिग्नल करने का काम करेंगे. ये कुछ किलिंग वगैरह नहीं करते. बट साइटोटॉक्सिक टी सेल की बात करें तो ये डायरेक्टली वायरस इन्फेक्टेड सेल हो या ट्यूमर सेल हो, इनको डायरेक्टली किल करते हैं. उनको कुछ लाइक किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप आओ और किल करो, ये खुद ही किल करेंगे, अनलाइक द टी हेल्पर सेल. देन द मेमोरी टी सेल्स. नाउ यहाँ पे भी बी सेल में भी हमें पता है कि मेमोरी सेल्स होते हैं, यहाँ पे भी मेमोरी सेल्स होते हैं. सो द मेमोरी सेल्स लिव फ्रॉम द मेनी ईयर्स, हैव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस देम. एंड बिकॉज आपको पता है वैक्सीनेशन में भी ये कंसेप्ट आता है कि मेमोरी सेल्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर नीडेड टू मेमोराइज द इम्यूनिटी, सो दैट अगर अगली बार कुछ इन्फेक्शन हो, कुछ वायरस का इनकॉर्पोरेशन हो तो वो मेमोराइज हो जाए. Then large number of the memory cells are produced, so secondary response is enhanced and greater than the primary response. सो सेकंड टाइप जब इन्फेक्शन हो तो जल्दी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो, बिकॉज फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगेगा ही, ऑब्वियसली वो न्यू इन्फेक्शन है. सेकंड टाइम थोड़ा सा जल्दी लगेगा और एक हद तक एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इन्फेक्शन होगा ही नहीं, एंट्री से पहले ही वो किल हो जाएगा. Then they are activated by the small quantities of the antigens and require the less co-stimulation and tend to do a naive or the unactivated T cell. मतलब उनको ज़्यादा सिग्नलिंग एक्टिवेशन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका नाम ही है मेमोरी सेल. मतलब उनमें ऑलरेडी स्टोर्ड है कि उनको क्या करना है या किस में कन्वर्ट होना है. सो उनको ज़्यादा ट्रिगरिंग या फिर उनको ज़्यादा जो है इम्यून रिस्पॉन्स के सिग्नलिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती. So here they are generally central memory T cells, effector memory T cell, and the लाइक मेमोरी सेल डिपेंडेंट है. CD4 भी हो सकते हैं, CD8 भी हो सकते हैं. सो इन जनरली हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से अगर कुछ एंटीजन जो है वो ट्यूमर सेल हो या वायरस इन्फेक्टेड सेल हो तो वो CD8 में कन्वर्ट हो जाएगी. अगर वो इन्फेक्शन जो है वो अगर नॉट इंट्रासेलुलर हो, ऐसे ही एंटीजन हो बैक्टीरिया वगैरह का, देन इट विल बी लाइक सिग्नल करेगा वो बी सेल को वगैरह, सॉरी बी सेल को टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, और साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी वो सिग्नल करेगा. ऐसे काम जो है वो मेमोरी टी सेल करता है. मतलब उनका खुद का ये होता है, एबिलिटी होता है कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू CD4 सेल और द CD8 सेल. देन रेगुलेटरी टी सेल.
तो इनका नाम है रेगुलेटरी, मतलब दे आर द इम्पॉर्टेंट सेल फॉर द इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। मतलब क्या होता है, आपने ऑटो एंटीजेंस देखे थे, ऐसे ऐसे टाइप की जो इम्यूनिटी है, मतलब हमारे ही बॉडी सेल के अगेंस्ट कुछ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने लगे, सो इट इज़ कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी डिसफंक्शनल हो गई और ऐसे कुछ करने लगे कि अपने ही सेल को किल करने लगे, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव द रेगुलेटरी टी सेल जो ऐसे टॉलरेंस जनरेट करती है। सो नाउ so talking about this type of the T cell, they generally prevent the regulatory T cell, prevent the autoimmune diseases. Then other type is the natural killer cell. इनका नाम ही है नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर टाइप ऑफ टी सेल, जिनको कभी कभी सेपरेटली कैटेगराइज किया जाता है एज अ वन मोर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। तो वो जो नेचुरल किलर सेल होती है उनमें एक एबिलिटी होती है, अब उनका नाम नेचुरल किलर सेल है तो वो नेचुरली किल करेंगे। मतलब उनको क्या कुछ ऐसे नहीं कि सिग्नलिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती या उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसको क्या करना है, वो डायरेक्टली किल सेल को अटैक करेगा, भले वो एंटीजन हो, सेल्फ हो, नॉन सेल्फ हो, या फिर कोई भी एंटीजन हो, वायरस हो या फिर कोई भी, ये नेचुरली प्रेजेंट रहता है बॉडी में, एंड इरिस्पेक्टिव टू द पैटर्न वो अपना किलिंग का काम करेगा। सो इट इज़ जनरली एलोग्राफ्ट रिजेक्शन में इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पिंग। मतलब क्या होता है, कभी कभी अगर आपने देखा होगा, कभी कभी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ये होता है ऑलोग्राफ्ट, बिकॉज क्या कि हम सेम स्पेसिस का दूसरा ऑर्गन, सेम स्पेसिस के ऑर्गन दूसरे इंसान से लेके किसी इंसान में डालते हैं। सो इसके वजह से क्या होता है, अब कोई भी छोटी चीज़ भी जाए तब भी वो एंटीजन ही है, तो इतना बड़ा ऑर्गन जाएगा तो वो तो ऑब्वियसली एंटीजन, बड़ा एंटीजन होगा तो बड़ा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। सो हियर वो ऑर्गन का रिजेक्शन करने का मेन जो सेल जो रोल प्ले करती है, दे आर द नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, हाइपर एक्टिव वी कैन से, उनको सिग्नलिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंटीजन दिखा कि वो किल करेंगे। सो वो नेचुरली भी प्रेजेंट रहती बॉडी में, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी, मतलब वो बचपन अबाउट इन्फंट से प्रेजेंट रहती अडल्ट तक। सो दे आर नेचुरली प्रेजेंट एंड दे आर नेचुरल किलर सेल्स, and along with that they are able to recognize and eliminate some tumor cell, virus infected cell with the herpes viruses। कुछ वायरसेस का भी सेल की किलिंग का काम करेंगे, एज वेल एज द ट्यूमर सेल का भी किलिंग का काम करेंगे, इरिस्पेक्टिव टू द टाइप ऑफ द इन्फेक्शन। कुछ इनका कुछ स्पेसिफिसिटी नहीं है, डायरेक्टली किलिंग का काम करेंगे, नेचुरली किलिंग का काम करेंगे, नेचुरल किलर टी सेल्स। Then gamma delta type of the T cells, they are also subtype of the cells जिनमें T सेल रिसेप्टर, आपको पता है हर सेल का रिसेप्टर प्रेजेंट रहता जो प्रोटीन्स बाइंड होने हैं उसको, तो ये कुछ ऐसा रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है जिसमें अल्फा एंड बीटा चेन्स रहती है, लाइक दिस। ये टी सेल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है जो आपको अभी डिटेल में नहीं देखना है। सो ये जो गैमा डेल्टा टी सेल होते हैं ना, इनमें अल्फ़ा बीटा नहीं होता, इनमें होते हैं गैमा एंड डेल्टा जो चेन्स होती है, इसकी वजह से उनको गैमा डेल्टा टी सेल बोला जाता है, बिकॉज उनमें रिसेप्टर में ये गैमा चेन्स एंड डेल्टा चेन्स प्रेजेंट रहते हैं। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा। सो नाउ these T cells, they are very less in amount, about 2%, and they are having the abundance presence in the gut mucosa, यानी कि स्टमक या इंटेस्टाइन म्यूकोजा में ये प्रेजेंट रहते विद इन द पॉपुलेशन ऑफ द लिम्फोसाइट इज नोन एज द इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट। इनको इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, एंड दे आर वो कौन से एंटीजन से एक्टिवेट होते हैं ये भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है, एंड उनका MHC भी अभी तक नहीं पता चला कि कौन से MHC 1 से रिकॉग्नाइज, वो MHC 1 को रिकॉग्नाइज करते या 2 को रिकॉग्नाइज करते, ये भी अभी तक पता नहीं चला है। बट वो डायरेक्टली होल प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करते, मतलब वो कुछ पेप्टाइड क्या होता है ना, स्मॉल चेन ऑफ प्रोटीन, और स्मॉल वी कैन से चेन ही बोल सकते हैं उसको, स्मॉल चेन ऑफ प्रोटीन होता है, बट
प्रोटीन ओवरऑल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा 3D टाइप स्ट्रक्चर होता है, फोल्डिंग वगैरह होती है उसमें, ये उसको रिकॉग्नाइज करता है डायरेक्टली। इसको कुछ उसका पार्ट रिकॉग्नाइज नहीं करने आता, वो डायरेक्टली प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है। मतलब यहाँ पे आपको बहुत सिंपल याद रखना है कि उसमें होते हैं गामा एंड द डेल्टा चेन, अलॉन्ग विद दैट उसका रिकॉग्नाइजेशन पैटर्न अभी तक समझ नहीं आया है, वो होल प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है, किसी MHC क्लास 1 या 2 को रिकॉग्नाइज नहीं करता, या फिर वो लाइक होल एंड किस टाइप के एंटीजन से रिकॉग्नाइज होता है ये भी अभी तक ठीक से पता नहीं चला, बट होल प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है। देन अभी फंक्शन क्या है टी सेल का? टी सेल का फंक्शन है साइटोटॉक्सिसिटी, मतलब वायरस सेल को, वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करने का काम कौन करेगा? टी सेल। देन अलॉन्ग विद दैट उसमें जो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, मतलब एंटीबॉडी के एक्शन के, मतलब एंटीबॉडी जब वायरस से एंटीजन से बाइंड होगी तब जाके कुछ पाथवे एक्टिवेट होगा, उस पाथवे को कैरी आउट करने का फंक्शनिंग कौन करेगा? टी सेल। टी सेल अपोप्टोसिस करता है जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है। देन एलोग्राफ्ट रिजेक्शन में भी रोल है इनका, इवन हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीजन प्रोडक्शन भी ये रेगुलेट करता है। हाउ? बिकॉज वो बी सेल को एक्टिवेट करता है, हेल्पर टी सेल मैंने आपको बताया था। एंड देन साइटोटॉक्सिक टी सेल हेल्पर टी सेल का भी स्टिमुलेशन करने का काम करेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट रेगुलेटरी, तो आपको पता है ऑटो इम्यून डिसीज से प्रिवेंट करेगा, एंड उनको ही सप्रेसर टी सेल बोला जाता है। नाउ वन मोर टाइप ऑफ द लिम्फोसाइट विच इज़ द बी लिम्फोसाइट। हमने नेचुरल किलर टी सेल देखे, देन वी सॉ द टी लिम्फोसाइट के टाइप होते हैं साइटोटॉक्सिक, देन नेचुरल किलर टी सेल एंड हेल्पर टी सेल्स, उनके भी सब टाइप देखे हमने। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बी सेल्स। तो बी सेल का नाम है बी सेल, मतलब वो बोन मैरो में ही ओरिजिनेट हो गए एंड बोन मैरो में ही मैच्योर्ड हो गए। एंड सो नाउ प्रो बी सेल मतलब प्रो लिम्फोसाइट, जो लिम्फोब्लास्ट से फॉर्म होने वाले प्रो लिम्फोसाइट, वो फॉर्म होंगे जब अगर वो फीटस में है तो वो लीवर से फॉर्म होंगे, और अगर वो अडल्ट में है तो वो बोन मैरो से फॉर्म होंगे। 30% लिम्फोसाइट का पॉपुलेशन, मतलब थोड़ा कम है इनका पॉपुलेशन, अबाउट 30% है, वहाँ पे हमने 60 to 80% देखा था। देन शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन थोड़ा शॉर्ट होता है बिकॉज ऑब्वियसली इनका एंटीबॉडी प्रोडक्शन है काम, तो वो मेमोरी वगैरह बना के रखते हैं, सो नॉट अ बिग डील फॉर देम टू बी लिव फॉर शॉर्टर स्पैन। Then found in the germinal centers of the lymph nodes, in the white pulp of the spleen and in the malt, ये जो है माल्ट म्यूकोजल लेयर में प्रेजेंट रहता है। ये भी हम देखने वाले कौन से ऑर्गन्स रहते हैं इन द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो नाउ ये जो है लिम्फ नोड में रहते हैं, स्प्लीन में भी रहते हैं एंड माल्ट में, मतलब वो जब मैच्योर होंगे ना बी सेल, तो वो जाके वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएंगे, इधर ब्लड में वगैरह, या तो फिर लिम्फॉइड ऑर्गन्स में भी वो माइग्रेट होंगे, उनका डिसीजन है वो, बट वो मैच्योर जो है वो बी सेल में, बोन मैरो में ही होंगे बी सेल, उसके बाद वो कहीं पे भी जाए। देन द फंक्शंस ऑफ द बी सेल, तो हमको पता है बहुत बेसिक है, बी सेल डिफ्रेशिएट होती है इन द प्लाज्मा सेल एंड इन द मेमोरी बी सेल्स। तो प्लाज्मा सेल क्या करेगी? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेंगी, एंड द मेमोरी बी सेल उस एंटीबॉडीज़ की मेमोरी बना के रखेगी, सो दैट अगली बार इन्फेक्शन हो तो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हो अपने बॉडी में। सो नाउ देन दे हैव द रोल ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग टी सेल्स टू टी हेल्पर सेल। समटाइम्स क्या होता है कि बी सेल कभी कभी, आपने देखा था टी डिपेंडेंट एंटीजन एंड टी इंडिपेंडेंट एंटीजन, उसमें कभी कभी बी सेल जो है वो सिग्नलिंग करके टी हेल्पर सेल को दिखाती है, देन साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो जाता है। सो कभी कभी ये भी रोल बी सेल करती है, कभी कभी वो भी एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करती है जैसे कि टी हेल्पर सेल करता है। देन दे डेवलप इनटू द मेमोरी सेल्स, एक्टिवेशन बाय द एंटीजन इंट्रैक्शन, वो मेमोरी सेल भी फॉर्मेशन करती है। देन बी, अभी मैंने आपको बताया था वो फैब्रिका और बुर्सा जो होती है ना बर्ड्स में, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये टर्म बी सेल। तो वो फर्स्ट टाइम उस ऑर्गेनल जो बर्ड्स में प्रेजेंट रहता है, बुर्सा और फैब्रिकस, वहाँ पे वो फाउंड हुआ था, इसकी वजह से उनको बी सेल कहा जाता है। सो देन टॉकिंग अबाउट द बी सेल, तो उसके दो टाइप्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड द मेमोरी सेल्स। ऑफ टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल का तो आपको पता है कि वो मेमोरी सेल स्टोर हो जाती है बॉडी में। प्लाज्मा सेल जो होती है
दे आर डिफ्रेंशिएटेड बी सेल, ओवल एग शेप स्ट्रक्चर होता है उनका, और नॉन स्टेनिंग गोल्गी और द बेसोफिलिक, साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होता है, गोल्गी एपरेटस भी उनमें प्रेजेंट रहता है जो स्टेन नहीं होता। देन फाउंड इन द बोन मैरो, ऑब्वियसली उनका लोकेशन बोन मैरो ही है, मैचुरेशन भी बोन मैरो है, शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ लाइक 30 days, प्रोड्यूस उनका फंक्शन है टू प्रोड्यूस एंड सीक्रेट ऑल क्लासेस, वो आईजी या इम्यूनोग्लोबुलिन के सभी क्लासेस के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, IgA, IgM, IgD, IgE सब टाइप्स के। देन सिक्रेटिंग द थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडीज पर सेकंड विच आर स्पेसिफिक टू एंटीजन। तो बहुत ज़्यादा मतलब एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एंटीजन के अकॉर्डिंगली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। नेचुरल किलर सेल का हमने स्टडी किया कि वो नेचुरली किल करते हैं सेल्स को। देन दे आर हैविंग द CD3 प्रोटीन, जैसे हमने CD4 और CD8 देखा साइटोटॉक्सिक टी सेल और टी हेल्पर सेल में, यहाँ पे CD3 टाइप ऑफ रिसेप्टर आर प्रेजेंट, एंड थाइमस वगैरह में ये डेवलपमेंट नहीं होता इनका, दे डेवलप इनसाइड द बोन मैरो इटसेल्फ, देन एंड मैच्योर इनसाइड द बोन मैरो इटसेल्फ। वो एंटीजन डिपेंडेंट पाथवे कैरी आउट करते हैं, एंड दे हैव द इंटरल्यूकिन 2 की वजह से वो एक्टिवेट जनरली होते हैं नेचुरल किलर सेल, सॉरी मैंने आपको ये बताया नहीं, इंटरल्यूकिन 2 एंड द गामा इंफेरॉन्स, मतलब इंटरल्यूकिन 2 ये साइटोकाइन कभी कभी उनको एक्टिवेट करने के लिए काम आता है। देन इनका फंक्शन क्या है, वायरस सेल या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल या तो ट्यूमर सेल का किलिंग का काम करता है नेचुरल किलर सेल। नॉन स्पेसिफिक किलिंग है, मतलब ये कुछ ऐसा है नहीं कि ये इन्हीं को किल करेगा या उन्हीं को किल करेगा, वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली किल करता है, कहीं पे भी उनको वायरस या बैक्टीरिया दिखा वो किल करेगा, उनका कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि वो इसको ही किल करेगा उसको ही किल करेगा, ये जनरली होता नहीं है, बट ये नेचुरली प्रेजेंट रहता है बॉडी में। ह्यूमरल इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी हम बोल सकते हैं, वो इन्फेंट से प्रेजेंट रहता है बॉडी में। सो नाउ अ मैकेनिज्म ऑफ किलिंग इज बाय परफोरिन्स और ग्रैंजाइम्स, मतलब इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं ग्रैन्युलोसाइड फॉर्म में और कुछ एंजाइम्स और कुछ केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिससे वो किलिंग करते हैं, एंड किलिंग इज एक्टिवेटेड बाय द फेलियर टू द सेल टू प्रेजेंट एंटीजन विथ क्लास 1 MHC प्रोटीन्स ऑन द सेल सर्फेस। यहाँ पे जो है ये कब एक्टिवेट होती है, कभी कभी अगर MHC1 प्रोटीन जो है वो अगर नहीं प्रेजेंट कर पाई एंटीजन को किसी सेल को, अभी ये ज़रूरी तो नहीं कि एंटीजन प्रेजेंटेशन प्रॉपरली हो, अगर वो नहीं हुआ प्रॉपरली तो ये सेल आ जाती है, वो किलिंग कर देगी, फिर वो कोई भी एंटीजन वो नहीं देखेगी, वो किल कर लेगी। So this is how natural killer cell is going to help the immune system. So these are the types of the lymphocytes. हमने देखा कि वो कैसे फॉर्म होते हैं एंड उनके कौन से टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, डिटेल में लाइक याद रखने की ज़रूरत नहीं, एक एक फंक्शन आप उनका याद रखो एंड आपको समझ आ जाएगा। सो थैंक यू, एंड हियर वी आर डन विद द blood cell formation chapter, and in the next lecture we are going to study the lymphoid organs or lymphatic system, and I hope you have understood this. Thank you.